Imagine that this is going to be so nice. मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी कि ये शायद इतना अच्छा होगा, But when nice people are meeting, God has given a nice place. क्योंकि अच्छे लोग मिलते हैं इसीलिए परमेश्वर ने अच्छी जगह दी है। I only hope at the end of the message, you will say it's a nice message. और मैं आशा करता हूँ, सिर्फ इतनी आशा करता हूँ कि जब ये सभा समाप्त हो जाएगी तब मेरे संदेश को भी आप कहोगे कि ये बहुत अच्छा संदेश था। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। I'll pray in Hindi so that everybody can follow. सर के पिता तेरे सामने आते धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद देते आपके लोगों के लिए, धन्यवाद देते इस जगह के लिए, धन्यवाद देते तेरे वादा के लिए, क्योंकि तेरा वचन हमें याद दिलाता है जब तेरे लोग इकट्ठा होते हैं तू हमारे ऊपर आके बसता है, जब तेरी स्तुति होती है, तेरी आराधना होती है। Dear Father, we welcome you. We thank you that you are here. Keep us covered with your holy mantle. Keep us sealed in the precious blood of the Lord Jesus Christ and your Holy Spirit. Open my understanding, open my mouth, and give a word to your people. Because dear Holy Spirit, you are the teacher. Father in heaven, we thank you. धन्यवाद हमारा खुदावन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। There are a lot of people who are here who I do recognize, and there are a lot of people here who I don't recognize. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पहचानता हूँ और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मैं पहली बार मिल रहा हूँ। So everyone, welcome on behalf of Pastor Binu and family. सभी का स्वागत करते हैं। And I want you to relax, मैं चाहता हूँ आप आराम से बैठिए, because when you are listening to anybody from the New Life Fellowship group, and I'm the original member, founder member of New Life Fellowship Bombay, you always be prepared to laugh, don't be serious. तो क्योंकि जो न्यू लाइफ कलीसिया के भाग जो पहले रहे हैं या फिर हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप आराम से बैठिए, क्योंकि आप बहुत हंसने वाले हैं यहाँ पे। At least कुछ तो हंसेंगे। My pastor, Pastor Joseph, who is now gone to be the Lord, he used to say, "Don't be like Sadducees, sad." मेरे जो पासवान है पास्टर सुसाई जोसेफ, वो हमेशा कहते थे कि सदूसीज जो हमेशा उदास और गंभीर रहते हैं, उनके जैसे आप मत रहा He कीजिए। said, "Be like Pharisees, always laughing." और फरीसी लोगों के जैसे रहिए जो हमेशा हंसते थे। So let's not be like Sadducees. I'm not going to bring a serious message, but I'm still going to be a very important message. मैं यहाँ पे एक गंभीर सा ऐसा मैसेज नहीं देने वाला, लेकिन महत्वपूर्ण ऐसा संदेश जरूर बांटूंगा। My opening verse, passage of scripture has already been hijacked by Pastor Binu. पासवान भीलू ने जो मैं पहला वचन यहाँ पे बांटने वाला था, उन्होंने चुरा लिया। You're laughing, I'm glad. आप उसके लिए हंसे जा रहे That हो। was Isaiah 54 and verse 2. यशायाह की किताब 54 में 2। When Lord speaking to Israel, God speaking to Isaiah to Israel, and not to you and to me, but says to Israel, spread your tents. यहोवा यशायाह के मुंह से इज़राइल से बात करता है। Sometimes we try to hijack all that was given to Israel and says for me. यहूदियों को जो दिया था संदेश यहोवा ने, वो संदेश हम चुराने की कोशिश करते हैं, खासकर मैं, Accidentally. और गलती से। We are entitled to every promise given to Israel. We are entitled to it because we are twins of Israel. यहूदियों को इज़राइल को जो वचन दिया था, प्रॉमिस दिए थे, वो सारे जो है वो हम ले सकते हैं। I don't mind speaking without a mic. I'm all right.
Can you hear me? Okay. Can you hear me? All right. I'm glad everybody is looking relaxed. I will start by reading a passage of scripture that is from 2 Kings, chapter 2, verses 1 to 15. We will not read the 15 verses, but it will come there in front of you just to look at it. दूसरा राजा 101 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 2 का 1 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे नहीं, but that is the reference we are going to take. यहाँ से हम वो सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं। This is the recorded history of Elijah following Elijah and asking for the double portion. एलिया और एलीशा के बारे में यहाँ लिखा है कि एक जो है वो दूसरे का दुगना भाग, दुगना आशीष कैसे चाहता था। Now that's a favorite topic with the Pentecostals in particular. और पेंटिकॉस्टल चर्च में ये बहुत ही उनका पसंदीदा ऐसा संदेश है। When pastors ask you, what should I pray for you? Most of us say, I want a double portion. बहुत बार पासवान के पास हम प्रार्थना के लिए जाते हैं तो पेंटिकॉस्टल चर्च में ऐसे होता है, तो ऐसे ही जब पासवान पूछते हैं क्या प्रार्थना करें तो वो कहते हैं प्रार्थना कीजिए कि हमें दुगना भाग मिले। I'm a Pentecostal by the way, so I'm talking about myself. मैं पेंटिकॉस्टल हूँ और मैं मेरे बारे में ही बात कर रहा हूँ। We love to say double portion, double portion, double portion. हम बहुत बार इच्छा करते हैं, हमें पसंद आता है दुगना भाग, दुगना भाग, दुगना भाग। And most of us don't even understand what that double portion is all about. बहुत बार हम समझ नहीं पाते ये दुगना भाग जिसकी हम मांग कर रहे हैं ये क्या है। And this is the part of scripture that we're taking today in our study. और हमारी इस अध्ययन में यही ये भाग हम आज पढ़ने वाले हैं। Elijah was being followed by Elisha. एलीशा जो है एलिय्याह का पीछा कर रहा था। Now, the name Elijah actually means my God is Jah. God and Jah are the same. So Elijah, E-L-I is God, Jah also is God. Therefore Elijah means God is Jah. God is God. एलिय्याह का मतलब है परमेश्वर जाह है। So if we carefully listen to that or look at it, it's symbolic of the Father and the Son. अगर हम ठीक से ध्यान पूर्वक इस नाम का पढ़ाई करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे पिता और बेटे दोनों का संगम है। Alright, not a sangam, but they are one. संगम नहीं है, वो दोनों एक हैं। Keep laughing, keep relax, just relax. And Elijah is being followed by Elisha. एलिय्याह का पीछा एलीशा कर रहा था। Elisha means God is salvation. एलीशा जो एलिय्याह का पीछा कर रहा था उसका मतलब है प्रभु मेरा बचाने वाला तारण करता। Now when Elisha was following Elijah, he was doing the right thing. जब एलीशा एलिय्याह का पीछा कर रहा था तो वो सही बात कर रहा था। So the journey is Gilgal to Bethel. तो ये जो यात्रा है गिलगाल से बेथेल की तरफ की है, Bethel to Jericho, बेथेल से जेरिको की तरफ की है, Jericho to Jordan, जेरिको से यरदेन की तरफ की है, and Jordan into glory. और From Jordan to glory. यरदेन से महिमा की तरफ की है। Now I want them to look at the map of Israel. मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप इजराइल का मानचित्र देखें। And I'm going to show you something very interesting. यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Now when we come to Gilgal, जब गिलगाल की तरफ हम आते हैं, we don't have it marked out here. You can see here Gilgal. नीचे यहाँ पे गिलगाल का आप देख सकते हैं। From Gilgal to Bethel. Gilgal- गिलगाल से लेके बेथेल तक आप देखिए। Then Bethel to Jordan,
बेथेल से जेरिको, बेथेल से जेरिको, Jericho, so back here, sorry, Bethel to Jericho, which is back here, बेथेल से जेरिको जो वापस आने की यात्रा है, and then Jericho to Jordan, और तब जेरिको से यरदन नदी तक, and Jordan to glory. और यरदन नदी से महिमा की तरफ। Now look carefully. ध्यान से देखिए, Gilgal is here, Jericho is here. गिलगाल और जेरिको पास में है, Why all the way there? क्यों And वहां the पे back- गए हैं? बेथेल की तरफ आड़े टेढ़े रास्ते में, दूर रास्ते में क्यों गए हैं? Just keep that in mind, ये अपने दिमाग में रखिए, because this journey is reflective of the life of a believer, yours and mine. क्योंकि ये यात्रा एक विश्वासी की यात्रा को दर्शाता है। Why not straight from Gilgal to Jordan, आजू बाजू में है, क्यों नहीं गिलगाल से सीधा यरदन की तरफ, क्योंकि वो आसपास ही है, ऐसा क्यों नहीं है? Gilgal is the starting point, गिलगाल से शुरुआत होती है, but that will be saying, after my birth I can die immediately. तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे मेरा नया जन्म गिलगाल में होता है, तब मैं शारीरिक जन्म, शारीरिक जन्म अगर गिलगाल में मेरा होता है, तो क्यों ना मैं यरदन में जाके मर जाऊं? everyone who is born has to die. जो कोई भी इस धरती पे जन्म लेता है, उसे तो मरना है। Oh, I'm born, after a little while I can die. मैंने जन्म लिया है, थोड़ी देर में, थोड़ी दिनों में मैं मर जाऊंगा, That's not God's plan. लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। So when we look at that, हम जब अब से देखते हैं, I want us, each one of us, to consider yourself there as I will consider that I'm there. तो जब हम इसके बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को उस गिलगाल में और उन सारी जगहों में देखें। Gilgal to Bethel, गिलगाल से बेथेल की तरफ, Bethel to Jericho, बेथेल से जेरिको की तरफ, Jericho to Jordan, जेरिको से यरदन की तरफ, and Jordan into glory. और यरदन से महिमा में। Therefore, Jordan means the last part of our life, like mine. और यरदन का मतलब है हमारे जीवन का आखिरी समय, जैसा मेरा है। Why I'm saying like mine, मैं ऐसे because क्यों I'm कहता हूँ? already well past into my 70s. क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ क्योंकि मैं 70 से अधिक उम्र का हूँ। The Bible says after 70, be prepared. बाइबल हमको बताती है 70 साल के बाद तैयार हो जाइए, And I'm still laughing. और मैं फिर भी हंसता हूँ। So this is a great journey where you and I are there. तो ये एक महान ऐसी यात्रा है जहाँ पे आप और हम हैं। I want us to take this in because as you go back, as you listen, as you consider your life, you will find yourself in this journey somewhere or the other. मैं चाहता हूँ कि आप इसे ग्रहण करके अपने अंदर ले लें, क्योंकि ये जर्नी जो है, ये यात्रा जो है, वो हमारे यात्रा को Now, दर्शाती starting है। at Gilgal. Gilgal is the place where the children of Israel crossed over Jordan and they camped over there. गिलगाल ऐसी जगह है जहाँ पे यरदन नदी को पार करके यहूदी लोग, इजरायली लोग वहाँ बसे थे। Yeah, right, was get it. And to save time, I'll just tell you the reference and you will remember it. It's Joshua chapter 4, verse 19 and 20. Joshua chapter 4, verses 19 and 20. समय बचाने के लिए यहोशू का जो पाठ है वो चौथा 19 से 20 में ये यहाँ लिखा हुआ है, And verse 20 says that they camped over there. और 20 में कहते हैं कि गिलगाल में उन्होंने डेरा डाल दिया था। Correct, डेरा डाल दिया था. You know, they relaxed over there. वहाँ पे डेरा डाल के उन्होंने आराम कर लिया था। When you put down a camp, it's like making your house, your home, your establishment. जहाँ पे हम तंबू डालते हैं, डेरा डालते हैं, उसका मतलब है कि हम वहाँ पे हमारा घर बनाते हैं, हम वहाँ पे वास करते हैं। You can't hear me? Okay, can you hear me? If you can't hear me, you can hear me now. I have got a mic inside me. All right. And this is a truth of Christian life. और यही सच्चाई है मसीह जीवन की। Many of us, after we are saved and we are baptized and we receive the anointing, we relax
over there. जैसे गिलगाल में ये लोग आराम करते हैं, हमारा जीवन भी ऐसा है। हम मसीह को स्वीकारते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, हमारे ऊपर अभिषेक आता है और उसके बाद हम आराम करते हैं। I have received it all. मैंने सब कुछ तो पा लिया, What more do I want? अब मुझे और किसकी जरूरत है? That is Gilgal. और उसी को कहते हैं गिलगाल। And many of us get stuck at Gilgal. और इसी तरह हम में से कई लोग जो है गिलगाल में फंस सकते हैं। I've received it all. मैंने सब कुछ तो पा लिया, क्या चाहिए? Nothing else. अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। We start settling down as a weakness in Christian life. और मसीह जीवन की एक कमजोरी के नाते के रिश्ते हम वहाँ पे आराम करने लगते हैं, गिलगाल में तंबू डाल लेते हैं। Yeah, we get relaxed there, and this is a dangerous thing in Christian life. और गिलगाल में हम आराम करने लगते हैं कि अब सब खत्म हो गया है, अब सारा संघर्ष खत्म हो गया है, और ये बहुत ही खतरनाक ऐसी बात है। Disciples had this weakness, particularly Peter. और पीटर के पास ये कमजोरी थी। In Matthew chapter 17, we know that Mount of Transfiguration, we found that when they go up to pray, and Jesus and Moshe and Elisha are suddenly seen in glory. मत्ती 17 में लिखा है कि पीटर उस पहाड़ पे गया था जहाँ पे यीशु जो है पूरी महिमा में आया था, मूसा और एलिशा भी वहाँ था। Those who are taking the references is Matthew 17, 1-5. जो लिख रहे हैं 17 मत्ती 105। And Peter, who always liked to talk a lot, और पीटर जो है, पेत्र जो है, जिसको जो बातूनी था, उसको बातें करना बहुत पसंद था। big talks and little work initially. बड़ी बड़ी बातें करता था लेकिन बहुत छोटे छोटे काम करता था। Suddenly he's flabbergasted and he says, Master, we'll make 3 tabernacles here. One for you, one for Moshe, and one for Elijah, and we'll settle down here. और बातूनी जो कम छोटे काम करता था, बातूनी था, उस पहाड़ पे जब महिमा में यीशु को देखा तब उसने मुंह खोल के बोल दिया कि, और वो डर गया शायद, और बोला कि एलाइजा आपके लिए, यीशु आपके लिए और मूसा आपके लिए हम तंबू बनाएंगे। See, tabernacles are not made overnight, but it's a time-consuming construction. और तंबू जो है वो एक रात में बनने वाली चीज नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है। So it means settle down. तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अब हम बहुत समय के लिए या फिर बहुत समय के लिए वास करेंगे। सर, Peter had climbed up in the mountain with the Lord Jesus Christ. हम देखते हैं पीटर जो है, पेत्र जो है, उस पहाड़ पे यीशु के साथ चढ़ा। Now everything is fine. सब कुछ अच्छा है, Settle down. सब कुछ अच्छा है तो आराम कर लें। And this is our weakness. और यही हमारी मसीही जीवन में And कमजोरी the है। Lord intervened. और तब यीशु ने And it बीच says में आए, there that he heard a voice, तब उसने that आवाज the voice सुनी of the Lord, the Father, और पिता परमेश्वर की आवाज सुनी, says, listen to him. और तब पिता परमेश्वर की आवाज ने कहा कि यीशु की सुनो। Listen to the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनो। This is our weakness. ये हमारी कमजोरी है। We want God to listen to our voice. बहुत बार हम चाहते हैं कि हम जो कहते हैं वो प्रभु सुने। We have a long list of things. हमारे पास बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है सुनाने के लिए, And out of the big list, even if God gives that much, we are very happy. और उस बड़ी लंबी लिस्ट में परमेश्वर ने छोटी सी कुछ चीजें दी थी तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। God is saying, listen. लेकिन प्रभु यहाँ पे कहता है मेरी सुनो। When we look back into the Old Testament and the time of Solomon, when he built the temple, God asked Solomon, what do you want? और पुराने नियम में हम देखते हैं जब सुलेमान राजा ने यहोवा के लिए मंदिर बांधा, तब यहोवा आके सुलेमान को पूछते हैं, राजा सुलेमान को, कि तुझे क्या चाहिए। Those who are taking down the references is 1 King chapter 3 verses 9, 12 and 5, 9 and 12. पहला राजा जो लिख रहे हैं, पहला राजा 3 अध्याय में 9, 10 और 12। Listen very carefully. लेकिन ध्यान से सुनिए, God is very happy with Solomon. परमेश्वर सुलेमान से बहुत खुश होता है। This is Solomon. और कहते हैं सुलेमान, I'll put myself in Solomon's place for a minute. मैं 1 मिनट के लिए खुद को सुलेमान बोलता हूँ। Beta, what do you want? और जैसे पिता गाल पे थपथपाते हैं, कहते हैं कि बच्चे तुझे क्या चाहिए।
What better do I want with God asking me what I want? और सबसे बेहतरीन बात ये होगी कि खुद परमेश्वर आते हैं और आपको पूछते हैं कि बच्चे तुझे क्या चाहिए. But if that God had asked you what you want, how long would your list be? बल्कि अगर परमेश्वर आपको पूछेंगे आपको क्या चाहिए तो आपकी कोई लिस्ट बता सकते हैं जो बहुत लंबी है. If God asked me, I'm suppose I'd make a big huge list and say, Lord, thank you. Here's my list. और परमेश्वर अगर मुझे पूछेंगे तो मैं जरूर कहूंगा देखो मेरी इतनी बड़ी लिस्ट है आप इसमें से मुझे कुछ दे दीजिए. Let's look at what Solomon did. लेकिन यहाँ देखते हैं सुलेमान राजा ने क्या किया. He says, Lord, I want nothing. और उसने कहा परमेश्वर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए Only wisdom और सिर्फ तेरी बुद्धि तेरा ज्ञान to govern your people. कि तेरे लोगों पे मैं राज कर पाऊं. And that is what we need to do. To hear the voice of God instead of telling God, Lord, you hear my voice. और आज हमको यही करने की जरूरत है कि परमेश्वर आपकी वाणी कैसे हम सुन पाए ना कि हम आपको क्या क्या बता पाए. So when we are in our first camp, Gilgal, we should first listen to the voice of God. जब हम गिलगाल में जो पहला तंबू है डेरा हमने डाला है तो हमें आराम नहीं करना है लेकिन परमेश्वर यहोवा की वाणी को सुनना है. Are you hearing the voice of God? क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं. God is speaking to us, to somebody here, to somebody is here. परमेश्वर यहाँ पे कोई तो है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है. Now let's move on. तो आगे बढ़ते हैं Chapter 2, verse 2. और दूसरे अध्याय में दूसरा वचन. It says Elijah says to Elisha. Oh, by the way, let's keep it this way. For a moment, when we say Elijah, let's presume it is Jesus Christ because of that name. एलिय्याह जिसका नाम है पिता और बेटे का संगम अभी हमने पढ़ा तो उसको हम यीशु का के जैसे देखेंगे. And Elisha is you and I. और एलीशा जो है आप और हम हैं. All right. अब ठीक है. Now Elijah says to Elisha, एलिय्याह ने एलीशा से कहा "You are well settled, okay? You stay here. I'm moving on." उसने कहा कि अब तू आराम कर यहाँ पे तू यहाँ पे आराम से है अब मैं आगे बढ़ता हूँ. Because God is sending me to Bethel. क्योंकि परमेश्वर अब मुझे गिलगाल से बेथेल की तरफ ले जा रहा है. Right across. और पूरा एकदम सीधे मतलब बहुत दूरी पे. I have a map of Israel here. यहाँ पे मेरे पास इजराइल का एक मानचित्र है. Carry it in my Bible for such occasions. मैं ऐसे मौकों के लिए मेरे बाइबल में इसको लेके चलता हूँ. Just come and it will help because it's not so clear. Have you got Bethel over there? Have you got Bethel there? All right, I'll put this up. Can you all see this map? Can you all see this map? क्या ऐसे आप देख पा रहे हो? All right. So it's right across. Oh, you're seeing it there, right across. There is Gilgal over there, Nikki. Gilgal is not there. गिलगाल को देख सकते हैं हम यहाँ पे जो यरदन नदी के पास में है. So Gilgal is over here. यहाँ पे गिलगाल है And Bethel is right across. और कुछ दूरी पार करके टेढ़े रास्ते में बेथेल है. Almost diametrically crossing the two sides. और जैसा डायगोनल होता है वैसा टेढ़े दिशा में कहीं और दूर बेथेल है. How many have been to Israel? हम में से कितने लोग इजराइल गए हैं? Oh, come on, it's time to go. It's long overdue. It's long overdue. Time to take a trip. इजराइल जाने का समय आ गया है. क्यों ना हम वहाँ जाने की तैयारी करें. So now Elijah is telling Elisha. तो यहाँ पे एलिया जो है वो एलीशा को कहता है You stay here. गिलगाल में तू रह जा. You're relaxed. तो यहाँ पे आराम कर ले. And sometimes when we relax, we will collapse. और बहुत बार जब हम आराम करने लगते हैं हम शायद वहाँ बेहोश ही हो जाते So हैं. you must be saying you relax and collapse here. So- But God is sending me to Bethel. तो ये एलिया यहाँ पे बहुत बोलता था कि शायद तो आराम ही कर ले लेकिन परमेश्वर मुझे बेथेल की तरफ ले जाना चाहता है. Remember what is Gilgal?
तो हम जानते हैं गिलगाल क्या है, Place to relax. एक ऐसी जगह जहाँ तंबू गाड़ा है और वहाँ हम आराम But करते हैं। where is Bethel? What is Bethel? लेकिन बेथेल कहाँ है और बेथेल क्या है? Because he says, I'm moving on. वो क्योंकि एलिया कहता है मैं तो आगे जा रहा हूँ। You remember what Bethel is all about? क्या आप जानते हैं बेथेल किसको दर्शाता है, क्या कुछ वहाँ हुआ था? We look in the Old Testament, we remember Jacob. वहाँ पे पुराने नियम में हम याकूब को देखते When he हैं। saw that dream there, that time the name was called Luz, L-U-Z. और जिस समय याकूब वहाँ पे सोया था, सो के पत्थर पे उसको जो सपना आया था, उस समय उस जगह को LUZ लूज कहते हैं। And what does Jacob name that place? और वहाँ पे याकूब ने उस लूज नामक जगह को क्या नाम दिया, क्या आपको पता It's है? the house of God. और उसने कहा ये प्रभु का घर है। He was amazed, shocked. वो वहाँ पे अचंभित हो गया। So when we talk of Bethel, what should you and I consider Bethel is? जब हम बेथेल के बारे में बात करते हैं तब हम और आप बेथेल को क्या करके जानना चाहिए? So we should consider Bethel as the place of surrender. और बेथेल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित करते हैं। So in this journey, और इस यात्रा में from relaxing, the next step is surrender. और जहाँ गिलगाल में तंबू गाड़ के हमसे सोचा कि हम आराम करेंगे, अगला जो पड़ाव है वो है अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना। This surrender is not easy. ये जो पूरी तरह समर्पण कोई आसान बात नहीं है। Even as I talk, I'm talking so much about my own life. और जब मैं बात कर रहा हूँ तब मैं खुद के जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। When I look back into my youth and before marriage, शादी से पहले जवानी के दिनों के बारे में जब मैं बात I करता was a हूँ, gunda of the street. और ये सड़क के जो गुंडे होते हैं उस तरीके का मैं इंसान था। And I know what it is to surrender. और मैं जानता हूँ उस जगह से कि समर्पण क्या है। And I know how difficult it is. और मैं जानता हूँ कि वो कितना मुश्किल है। When God told me, now you go back to your gunda friends and tell them about me. और जब परमेश्वर ने मेरे तारण के बाद, बचाव के बाद बताया कि वो जो आपके गुंडे दोस्त हैं उनके पास वापस जाओ और उनको सुसमाचार सुनाओ, It was so difficult. मेरे लिए इतना मुश्किल था। And when I went there, और जब मैं वहाँ गया, talked to them, बात किया, now Sunny is my home name. They said, Sunny, तुम्हें बहुत फर्क आ गया. You're very changed. और वो लोग मुझे बोले कि सनी तुम में तो बहुत बदलाव आ गया है। I'm sitting with all my gunda friends. मैं सारे मेरे गुंडे दोस्तों के साथ बैठा Feeling था so awkward. और मुझे बहुत ही अजीब सा वहाँ लग रहा था। I was not married. तब मेरी शादी नहीं हुई थी। Don't imagine that she led me to the Lord. I led her to the Lord. Huh? तो आप ये कल्पना मत कीजिए कि उन्होंने मुझे यीशु के पास ले आए, मैंने उन्हें, मेरी पत्नी को यीशु So के I पास was ले आए। not married and I was talking to these people. It's very, very difficult. और जब मैं इन लोगों से, मैं अविवाहित था और इन लोगों से, उन गुंडों दोस्तों से मैं बात कर रहा था, बहुत मुश्किल थी। And I learned what it is to surrender. और तब मैंने सीखा कि प्रभु की वाणी को सुन के कैसे और समर्पण करना Now है। there are 5 things that as believers we need to surrender when we come from Gilgal into Bethel. गिलगाल से बेथेल की तरफ जब आते हैं, मसीही होने के नाते 5 ऐसी चीजें हैं जिनको लेके, आधार लेके हमको समर्पण करना है। And the first thing to surrender और पहली बात समर्पण की है, is our greatest prize. और हमारी जो सबसे बड़ा जो हमारा तोहफा है, प्राइज, Yeah. सबसे बड़ा तोहफा अगर हमारे पास है। Now when God spoke to Abraham, and we find that in Genesis chapter 22, अब्राहम से जब यहोवा ने बात की उत्पत्ति की किताब 22 में, he said, Abraham, take your only son Yitzhak and go to that place, Mount Moriah. यहोवा ने अब्राहम से कहा कि तेरा इकलौता बेटा इसहाक को ले और मोरिया उस पर्वत पे चला आ। Now, by the way, these are some by the way things I'll keep telling you all. By the way, the Bible records that God says to Abraham, your only son is Isaac, Isaac. और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा खुद अब्राहम से कहते हैं कि तेरा इकलौता बेटा इसहाक। Of the subject, but in case you say
Abraham had other sons, but God recognized only Isaac लेकिन as his son. अगर हम बहुत बार देखते हैं अब्राहम के बहुत सारे बेटे थे, इसहाक से पहले भी पैदा हुआ बेटा था, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर सिर्फ इसहाक को ही उसका इकलौता बेटा कहता है। The great blessing of sonship is different from being just a son. और एक बेटे होने का अधिकार, ये महान अधिकार एक ऐसा आशीष लाता है कि सिर्फ बेटा होने से अलग है इकलौता बेटा होने का अधिकार। Right. Now he says to Abraham, और तब यहोवा अब्राहम से take कहता your है, only son आपका इकलौता बेटा लीजिए and go and sacrifice him. और उसको उस पर्वत पे बलि चढ़ा दीजिए। Lord, did I hear correctly? क्या मैंने सही सुना परमेश्वर? My previous talk was listen to the voice. और मैंने आपको बताया था गिलगाल में क्या होना है कि परमेश्वर की वाणी को ध्यान से सुनना है। Instead of saying, God, you listen to me, let us listen to God. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि परमेश्वर तुम हमारी, आप हमारी सुनो। Now God says to Abraham, put the most lovable thing of your life before me and sacrifice it. यहोवा अब्राहम से कहता है तेरे जीवन की सबसे चहेती चीज, वस्तु जो तुझे बहुत चहेता है, प्यारा है, वो मेरे सामने रख दे। Not easy. बिल्कुल भी आसान नहीं है। And what are the things today? What is the Isaacs of our life today? और आज हमारे जीवनों में इसहाक अगर है, एक नहीं बल्कि बहुत सारे इसहाक होंगे। Money, wealth, power, पैसा, name it. ताकत, सामर्थ, Reputation, बहुत सारी चीजें, greed, लालसा, marriage. शादी, This is a dangerous one. ये सबसे खतरनाक है जो हम शायद प्रभु के पास नहीं लाते हैं। We don't want to bring it to the Lord. प्रभु के पास हम नहीं लाना चाहते I हैं। can name a person, a pastor who you must have heard of, Willie Sones. मैं आपको एक पासवान के बारे में बताना चाहता हूँ जिनका आपने नाम Before he सुना got- है, विली सोन्स। I led him to the Lord by the way. So before he got married, he was friendly with 2-3 girls, and 2-3 girls were following him, things like that. मैंने उनको सुसमाचार बताया था और यीशु के पास लाया था, लेकिन जब शादी के पहले वो 2-3 ऐसी लड़कियों के साथ दोस्ती उनकी थी। So he went to hear Pastor Joseph, our senior pastor, और वो and Pastor Pastor Susan- Joseph said, yes, this girl is okay for you. और पास्टर सुसा जोसेफ के पास एक लड़की को ले गए और सुसा जोसेफ पास्टर ने कहा हाँ विली, आपकी विली सोन्स, ये आपके लिए लड़की ठीक है। So because Willie had been saved in my ministry and then myself, he came to us and he brought this girl and I said no. और पास्टर विली जो है वो हमारी सेवकाई में आगे बढ़े थे, तो वो हमारे पास उस लड़की को ले आए और हमने कह दिया कि नहीं। It's not easy for me to say in front of her no. और बहुत मुश्किल था उस लड़की के सामने ही बोलना कि ये प्रभु की तरफ से नहीं है। I said no. फिर भी मैंने कह And दिया she नहीं। started crying. और तब वो वहाँ पे रोने लगी। Then I told them, I said, put this on the altar before God. Let God speak to you. वो रोने लगी और मैंने कहा कि ये जो मामला है वो परमेश्वर की वेदी के पास ले आओ, परमेश्वर उसे सुलझा देगा। A few weeks later, or maybe 2 weeks later, they came to us, both of them. 2 हफ्ते बाद वो दोनों हमारे पास आए And I asked them this question. और मैंने उनको सवाल पूछा, Did you put it on the altar? क्या आपने इस मामले को परमेश्वर की वेदी के पास ले गए? Pastor Willie, he was not a pastor that day, he was just a chokra boy. He said yes. पास्टर विली ने कहा हाँ। He said yes. उन्होंने कहा हाँ रखा है। But the girl's answer stunned me. और जो लड़की का उत्तर है उससे मैं अचंभित हो गया। She said, yes, I put it on the altar, but I've taken it off. मैंने ये मामला जो है वेदी पे जरूर रखा है, लेकिन मैंने वापस ले लिया वहाँ से। What obedience this is. ये किस प्रकार का आज्ञा पालन है। By the way, later on they never got married. One married the other, somebody else, and things like that. तो बाद में मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक दूसरे से नहीं किसी और से शादी कर ली। And they later confessed to me individually that what you said. At that time they used to call me just Sonny because I was much younger, their age. They said, yes, what you said was correct. तब उन्होंने आके बाद में कहा था कि जो आपने कहा है भाई सनी वो सही था।
Surrender is very important. तो यहाँ पे समर्पण हमारे जीवन का बहुत जरूरी है। Money also is very important. पैसा भी बहुत जरूरी है। The greed for money actually drives our lives. तो पैसे की जो लालसा है, प्यार है, वो हमको हमारे जीवन को बहुत बार चलाती है। A very close friend of ours who's from Cochin, whom we picked up from the street, kept in our house, led to the Lord, came to Pune about 30 years later. 30 साल के बाद एक कोचिन में एक रास्ते पे चलते हुए राहगीर को हमने सुसमाचार सुनाया, हमारे घर में उसको पनाह दी। And he became a very rich man. और उसके बाद वो बहुत पैसे वाला धनी ऐसा व्यक्ति हो गया। When he visited us, he said, "You all must come to Cochin. We'll take you here, we'll take you there. पूरा घुमा के ले आएंगे." तब वो जब हमको फोन किए तब उन्होंने कहा कि आप हमारे घर कोचिन में आओ, हम आपको यहाँ घुमाएंगे, वहाँ घुमाएंगे, बहुत सारी चीजें जगह दिखाएंगे। And I, looking at him, I was wondering whether he's really in the Lord or not. और जब उसको मैं देखता था, क्योंकि हमने उसको मसीह में लाया था, मसीह के बारे में बताया था, तब उसको देख के, उसका हुलिया देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो यीशु को सरेंडर किया है। He had tons and tons of money suddenly. और उसके पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया था। And I asked him one question. तब मैंने उसको एक सवाल पूछा। I said, Paul, his name is Paul. I said, Paul, take out the Bible and read Mark 8:36. मरकुस की किताब 8:36 आप खोलो। पॉल उनका नाम था, आप खोलो और पढ़ो। And that verse says, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? एक इंसान को क्या ही लाभ होगा अगर सारी दुनिया की संपत्ति वो ले उसके पास हो, लेकिन खुद का जो प्राण है वो ना बच पाए। What does it profit a man if he gains the whole world but he loses his own soul? तो वहाँ पे मैंने पॉल को बोला कि क्या तुझे ऐसा लाभ होगा कि सारी दुनिया की संपत्ति तू हासिल कर लेगा और खुद का प्राण गवा देगा। These are the words of the Lord Jesus Christ. और ये जो वचन है ये यीशु मसीह के खुद के वचन थे। About 6 months later, Paul contacted me, and then in fact he came into Pune. और 6 महीने के बाद ये जो कोचिन में मिला हुआ मेरा दोस्त या फिर चेला था पॉल, वो उसने मुझे फोन किया। And he said, Sunny, that day I couldn't sleep that night. और जब आपने वचन बांटा भाई सनी, तब मैं उस रात सो नहीं पाया। And he said, my life has changed. और उस वचन के द्वारा मेरा जीवन जो है बदल गया। Until then I was thinking only money, 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 and I pray the Lord, and God is blessing me, money, money, money. और तब तक मैं सिर्फ पैसे के बारे में सोचता था, मैं प्रार्थना करता था और पैसे परमेश्वर बहुत देता था। And I have a bungalow and good business. और मेरे पास एक बड़ा सा ऐसा घर है और बड़ा ऐसा व्यवसाय है। But that one question, what will it profit? I gain everything and I lose my own soul. लेकिन आपने वो जो सवाल पूछा था मुझे बाइबल से कि क्या आपको हासिल होगा कि सारी दुनिया की संपत्ति आप ले लोगे और आपका प्राण गवा दोगे। And that is the question before us today. और आज हमारे सामने वो सवाल है, How much we are struggling for money? तो कितना हम जद्दोजहद करते हैं हर दिन पैसे के लिए। What do we not do for this? इस पैसे कमाने के लिए हम क्या नहीं करते। And the Lord is saying the same thing to somebody. और आज परमेश्वर यही चीज किसी को यहाँ पे कहता है। Believe me, I can point it out to you. मैं विश्वास कीजिए, मैं यहाँ God is showing me 2 people here. I could point them out to you right now. यहाँ पे परमेश्वर मुझे बताता है और मैं अपनी उंगली से उनको यहाँ पे बता सकता हूँ कि ये वचन आपके लिए है। The Lord is speaking to you because He loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे बात इस कारण करता है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता That है। is a sacrifice we have to make. तो ये जो बलिदान है, ये समर्पण है, हमको बेथेल जगह पे लाना है। And what else in Bethel have we to do? और दूसरी बात हमको बेथेल में क्या करनी है? To give up deceit. और जो हमारे जीवन में छलावा है या जो फंसाने वाली चीज है उसको हमको दे देना है। When we look into the book of Genesis, उत्पत्ति की किताब 27 में जब देखते हैं, we find that Jacob deceived his father.
हम देखते हैं वहाँ पे 27 में कि याकूब ने अपने पिता को फंसाया था। And what did he say to his father? और उसने उस समय उसके पिता को क्या कहा? I'm Esau. और उसने झूठ बोला, कहा कि मैं याकूब नहीं ईसाऊ हूँ। He may have a good intention, उसका शायद वो जो भी कर रहा था उसके पीछे करने का उसका उद्देश्य अच्छा हो, but it is deceit. लेकिन फिर भी वो फंसाने वाली बात थी। In our Christian life, telling lies is like drinking water. और हमारे मसीही जीवन में इतना साधारण सा हो गया है झूठ बोलना, जैसे हम रोजमर्रा में पानी पीते हैं वैसा झूठ बोलना हो गया I है। can give you little illustrations. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, Everyday ones. हर दिन का एक उदाहरण। We go driving on the road. जब हम रोड पे जाते हैं गाड़ी चला के, We get caught by the policeman. अगर हमको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, 1,000 rupees fine. वो बोलता है 1000 रुपए आपको अभी फाइन लगेगा। What do we do? तो हम क्या करते हैं? Take out from our pocket. हमारे जेब में से निकालते हैं And we do the needful. और जो हमको करना है बुरी चीज, शायद उसको ब्राइब भी कर देते हैं। As a home and a family, I'm testifying here that we are very, very careful. No matter what happens, we never do that. एक परिवार होने के नाते यहाँ पे मैं आपको साक्ष्य बताना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये बात कभी नहीं करते। Little lies. छोटी छोटे झूठ। License है. अगर पुलिस आपको पूछता है आपके पास लाइसेंस My है? license I left it at home. There's no license actually. मैंने घर पे रखा है और बहुत बार लाइसेंस नहीं होता है। Yesterday in my house, I was speaking to a believer driver. Do you have a license? He says no. But the way he said no, he says no. So innocent. कल मेरे घर में एक विश्वासी ऐसा बंदा आया था और मैंने उसको पूछा था क्या आपके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है? उसने बस बहुत इनोसेंटली कह दिया, बहुत इनोसेंटली कह दिया कि नहीं है मेरे पास लाइसेंस। Like that. So how do you manage? तो मैंने बोला आप चलाते कैसे हो गाड़ी? Manage कर लेते हैं. जैसे तैसे चला लेते हैं झूठ बोल के शायद। Lie is a lie in the Bible. झूठ बाइबल में बताया हुआ ही झूठ है। And I want us to take this down in the book of Revelation. रेवलेशन की किताब In Revelation 21 and verse 8, don't take it out. प्रकटीकरण 21 में 8 में लिखा है। It says there, I'll read this out because this is something that every believer needs to read and know. Revelation 21 and verse 8. मैं यहाँ पे ये पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि हर विश्वासी को ये जानना जरूरी है। Now I'll read it out and she translated it. For the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars will be thrown, they have their part in the lake of fire. Lies are treated in the same category as whoremongers, murderers, idolators, sorcerers. Same category, liars. 8 में लिखा है डरपोक, अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले, हत्यारे, व्यभिचार करने वाले, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उसी झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। तो झूठ का जो लेवल है, जो पात्र है, इन सब घिनौने अपराधों और पापों के लेवल में है। जो हम छोटा छोटा झूठ बोलते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, परमेश्वर के वचन में वो सीधा उसी लेवल में है। छोटा छोटा झूठ, what is छोटा छोटा झूठ? And what is the बड़ा झूठ? You know, many believers have a full definition for that. The Bible doesn't. बहुत सारे विश्वासियों के पास छोटा और बड़ा झूठ ये दोनों के अलग डेफिनेशन है, लेकिन बाइबल में झूठ का डेफिनेशन ऐसा नहीं है। And I had that definition also in my life. और यही जो है वो मेरे पास भी डेफिनेशन मेरे जीवन में था। And it happened in Bombay about almost
40 years ago, और 40 साल पहले मुंबई में मेरे साथ हुआ था 45 years ago, I don't remember, that God spoke to me on this matter. और परमेश्वर ने इस बारे में झूठ ना बोलने के बारे में मुझसे बात Because sitting in the office where I was, sitting in a senior position, telling lies was like drinking water. और जिस ओहदे पे बड़े ओहदे पे एक ऑफिस में जहाँ मैं काम करता था वहाँ पे झूठ बोलना मतलब रोज का काम था। And I came home and I spoke to my wife, and Nikki also was very small at that time, so maybe 40 years ago or 35 years ago, something like that. 35-40 साल पहले जब मैं घर आया वो सुन के, और मैंने पत्नी से कहा था, और मेरा बेटा बहुत छोटा था उस समय, And I sat down with them and I said, from today, this moment onwards, in our home, in our life, we will never tell lies, no matter what happens. तब मैं घर आके उनके सामने ये वादा किया कि मेरे जीवन में आगे कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन में एक परिवार होने के नाते आज से हम किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलेंगे। My wife was the first, she was very shocked, she said, how can that be? और मेरी जो पत्नी है ये सुनने के लिए पहली थी और वो अचंभित थी कि ये कैसे हो सकता है। You know, it's become so natural for us to say छोटा lie and go on in life. क्योंकि ये कितना साधारण सा हो जाता है, स्वाभाविक सा हो जाता है कि छोटा सा झूठ बोलो और अपना काम बना लो। And when God showed me that verse, I said we're going to pray and it's not going to happen no matter what happens. जब परमेश्वर ने मुझे प्रगटीकरण का 21:8 दिखाया तब मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में हम झूठ नहीं बोलेंगे। And we sat and prayed as a family. तब हम परिवार होने के नाते हमने बैठ के प्रार्थना की। And I can testify, और मैं साक्ष्य दे सकता हूँ, since then till now, we do not tell lies. तब से लेके आज तक मैं आपको गवाही दे सकता हूँ कि हम झूठ नहीं बोलते। What am I doing? तो मैं क्या कर रहा I'm हूँ? following Elijah. अब मैं एलीशा, And I've made a sacrifice. And I've said here, this is a place of surrender. तो एलीशा जो मैं हूँ, एलिया का पीछा कर रहा हूँ, बेथेल तक पहुँचा हूँ और मैं अपने आप को वहाँ पे सरेंडर कर दिया हूँ। The Lord is speaking to us. परमेश्वर यहाँ पे हमसे बात The कर next रहा है। thing we have to surrender is running from God. और तीसरी बात जो हमको समर्पण करना है वो है परमेश्वर से दूर भागना। We run from God at any excuse. हम परमेश्वर से दूर भागते हैं कोई भी बहाना बना के। You know, if you read Psalm 139, don't take it out. And we have a famous Hindi chorus. तेरे क्या किधर मैं भाग सकूं और तुम किधर पीछे हैं? हाँ नहीं तो हाँ तुमने हाँ आपसे कहाँ भाग के जाऊं? We sing this so much and we practice exactly opposite. हम 139 भजन संहिता में लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरी आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊं, और इसका बिल्कुल विपरीत हम करते हैं। We run from the Lord just as Moses ran from the Lord. हम परमेश्वर से ऐसे भागते हैं परमेश्वर की विपरीत दिशा में जैसे मूसा भागता था, भागा था। Committed a murder, he ran from the Lord. और जब मूसा ने वो हत्या की थी तब वो परमेश्वर से दूर भाग गया था। Now you and I can be just there. और वो मूसा की जैसे ही हम हो सकते हैं। It's a Moshe, not Musa. Everything is a Muslim. ओके तब मोशे के जैसे हम हो सकते हैं। But God said, all right, you're running now. Do 40 years of Bible training, 40 years of Bible college. तब मूसा जब मोशे जब भागा था तब परमेश्वर ने उसे कहा था ठीक है तू मुझसे दूर भागता है तो अब क्या कर 40 साल का बाइबल स्टडी कर ले, Bible college. बाइबल कॉलेज कर ले। Lovely open air Bible college. और वहाँ 40 years. 40 साल का ऐसा कोई खुले में यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था जहाँ पे वो बाइबल की पढ़ाई कर रहा था। Some of us may be there only running from God. Say, run. कहाँ तक भागोगे? Run. और शायद हम में से कई लोग वहाँ होंगे जो हम प्रभु से दूर भाग रहे हैं और प्रभु कहता होगा ठीक है भाग ले जितना भागना चाहता है। And then one day God says, now the time is up. और तब एक समय आएगा कि प्रभु बोलेगा कि अब तेरा समय खत्म हुआ भागने। And you know the word in which God appeared to Moshe and said, I'm the God of Abraham, Isaac and Jacob. I am he who has come. और तभी हम जानते हैं प्रभु जो है यहोवा जो है जलती झाड़ी में उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिंदा प्रभु हूँ और मैं ही प्रभु हूँ। But what happened to Moses? Moses forgot that God had chosen him.
और मोशे जो है भूल गया था कि उसका चुनाव यहोवा ने किया है। And God has chosen you because you are here today because God has chosen you. तो भूलिए मत, क्योंकि आज हम यहाँ पे पाए गए हैं और है तो प्रभु यहोवा ने हमको चुना है। And God does not forget. और प्रभु भूलता नहीं है। In John chapter 15 and verse 16, Jesus says, I have chosen you. You have not chosen me. 15-16 यूहान में कहता है यहोवा खुद कि मैंने तुझे चुना है, आपने मुझे नहीं चुना है। So don't think that you answer the very common thing. मसीही हेरा फेरी जो है ये बहुत ही कॉमन चीज है, हम यूं ही करते हैं झूठ बोलने जैसा। Now I'm quoting scripture. When you look into the life of David, मैं यहाँ पे आपको वचन बताता हूँ, ऐसी कहानी नहीं बता रहा, दाऊद के जीवन से देखते he हैं। achieved a lot. उसने बहुत कुछ अपने जीवन में पाया। Now you find in 2 Samuel, don't take it out, and chapter 11, and it says in verse 1 actually, it says there that when it was the time for the kings to go to war, and they went to war, David stayed back in Jerusalem. दूसरा शमूएल 11 में 2 में लिखा है, जब सारे राजा लड़ाई के लिए आगे कूच गए थे, दाऊद जो है अपने घर में रुका रहा। So firstly he did one wrong thing. Instead of being at war, he sat at home. तो पहली गलत चीज उसने जो की है वो वहां पे लड़ाई में राजा और दूसरे राजाओं के साथ रहना छोड़ के, लोगों के साथ रहना छोड़ के वो घर पे रह गया। युद्ध में नहीं गया, घर पे रिलैक्स किया। युद्ध में नहीं गया और घर पे आराम किया। And that's when the devil caught him. और जब आराम कर रहा था तभी शैतान ने है उसे आके दबोचा। And you know what happened after that? You know the whole story. और ये पूरी कहानी हम जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। How he manipulated और कैसे उसने हेरा फेरी कर ली and had Uriah killed. और ऊरिया जो एक इंसान था उसको कैसे उसने युद्ध भूमि में मरवा दिया। Uriah in Hebrew means light of God. और ऊरिया हिब्रू भाषा में उसका अर्थ है परमेश्वर की ज्योति। Had him killed. और उस परमेश्वर की ज्योति को उसने वहां पे खत्म कर दिया। I'm saying this so that we should be careful because manipulation among Christians and churches is rampant today. और मैं ये इसके लिए यहाँ पे कहता हूँ कि ये रोजमर्रा की और ये भयानक ऐसी बात हो रही है जो खुलेआम ऐसी उसका प्रभाव है कि हम हेरा फेरी करते हैं। जो प्रभु का अगर वचन आता है वो हम उसको दबा देते हैं, उसको मार देते हैं। And when people ask us, तो पूरी दुनिया कर रही है, everybody is doing it, why not I? तो जब हमको पूछा जाता है कि तुम मसीही होने के नाते ऐसा क्यों करते हो, तो हम उनको आराम से बहुत ही इनोसेंटली कह देते हैं सारी दुनिया तो करती है, हम क्यों ना करें। अरे I thought we were a separated people. लेकिन मैंने सोचा था हम तो अलग किए गए लोग हैं। We have to be careful of that. तो इसके लिए हमको संभालना है खुद को। The last thing that we have to give up is to say, I don't have time to pray. Time for prayer. और बेथेल आने के बाद पांचवी चीज जो हमको समर्पण करना है वो चीज है कि हम कहते हैं हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है। I don't have time to मेरे pray. पास प्रार्थना के लिए समय ही नहीं है। I got a WhatsApp message a few days ago. व्हाट्सएप में मैसेज आया कुछ दिनों पहले। If I remember clearly, it says the Muslims pray 3 times or 5 times a day. I don't know what it was. Let's say 3 times a day. The Jews pray 3 times a day, but the Christian doesn't have time to pray even once a day. व्हाट्सएप में This is the message I got the other day. व्हाट्सएप में ऐसा मैसेज था कि जो इस्लाम के लोग हैं वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, यहूदी 3 बार आराधना करते हैं, लेकिन मसीह जो है उनके पास समय ही नहीं है प्रार्थना करने। They tell me, the pastor, you pray for me. और वो मसीह लोग पासबान के पास आते हैं, कहते हैं कि पासबान अब मेरे लिए आप प्रार्थना I don't have time to pray until there is a big tragedy. और तब तक मेरे पास समय नहीं है प्रार्थना के लिए जब तक कोई विपदा, बड़ी ऐसी विपदा मेरे जीवन में नहीं आती। We have to give that up. तो वो जो प्रार्थना ना करने का आलस है, प्रार्थना करने का जो आलस है वो हमको यहाँ पे समर्पण करना है। Because otherwise the Lord will bless only the pastor. क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे प्रार्थना करने वाले पासवान को ही परमेश्वर आशीषित करेगा। Yeah. All right. So let's move on now from Bethel. Elijah says to Elisha, "Okay, fine. Now you stay here. I'm going on to Jericho." बेथेल में सारा समर्पण होने के बाद देखते हैं एलीशा से कहता है, अब तो यहीं रुक जा बेथेल में, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। God is sending me to Jericho. एलीशा से कहता है बेथेल से परमेश्वर यहोवा मुझे यरीहो लेके जा रहा है। If you picturize the Lord Jesus Christ and ourselves, we will understand this. अगर यीशु एलिया में हम देखेंगे और एलीशा में खुद को देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये किसके बारे में बात हो Now रही है। Bethel is surrender, but what is Jericho? बेथेल जो है यहाँ पे समर्पण की जगह है, लेकिन जेरिको क्या है? Jericho is the place of battle. यरीहो एक ऐसी भूमि है जहाँ पे युद्ध होता है। You remember the walls of Jericho, no? क्या आप जानते हैं जेरिको की दीवारें जो गिर गई थी? So Jericho means battle. तो जेरिको का मतलब है युद्ध। Arey sister, I'm a man of peace. I don't want to have battle. अरे भाई, मैं जो है वो शांति प्रस्थापित करने वाली ऐसी स्त्री हूँ, मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी है, युद्ध नहीं करना है। I'm a peaceful man. मैं बहुत शांति I'm a रखने वाली स्त्री Christian. हूँ। मैं मसीही हूँ जो शांति बनाए रखता I don't है। want to battle. मुझे युद्ध नहीं करना है। हम शांति से I'll do what you want me to do. जो कुछ भी है शांति में मैं बना रहूंगा, शांत रहूंगा। What is a battle? तो युद्ध क्या है? Cast out demons. क्या दुष्ट आत्मा को निकालना? Help me somebody. After that, what else is there in the battle? Not the pastor. आप बता सकते हैं अगर दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद युद्ध भूमि में और क्या होता है? What else? Quick, we're wasting time. Otherwise, lunch is getting cold. जल्दी कीजिए क्योंकि खाना ठंडा। Heal the sick. जो रोगी है उनको चंगाई देना। Pray for others. लोगों के लिए प्रार्थना करना। In Job chapter, don't take it out. Job chapter 42 verse 10 says, when Job prayed for his friends, God released him and blessed him. तो और दूसरी बात अय्यूब की किताब 42 में 10 में कहता है कि अय्यूब ने जब उसके दोस्तों के लिए प्रार्थना की तब परमेश्वर ने अय्यूब को चंगा कर दिया। He blessed him. अय्यूब को आशीषित कर दिया। And you know what the blessings of Job was at the end? और हम जानते हैं अय्यूब के आशीष जो अय्यूब के आखिरी पाठ में लिखा है, Everything was restored to him. सब कुछ उसको वापस दिया गया And it was in double. और जो कुछ भी उसे दिया गया, सब कुछ जो उसने गवाया था वो दुगना उसे मिला। Pray for your friends. तो इसीलिए हमें अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करना कितना जरूरी है। And then pray for your enemies also. और दोस्तों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्यों ना जो हमारे खिलाफ खड़े व्यक्ति हैं उनके लिए हम प्रार्थना During the करें। last 3 months, I was particularly challenged by this matter. तो ये 3 महीने से इस बात के लिए मैं संघर्ष कर रहा था। The particular person was time and again just trying to do something to make me uncomfortable, just for no reason. एक ऐसा व्यक्ति है पिछले 3 महीनों से मुझे बहुत ही विचलित करना और मुझे संघर्ष में डालने का ऐसा कुछ कर रहा था। And God spoke to me. He said, "Can you pray for him?" और तब प्रभु ने मुझसे बात किया कि संघर्ष में मत रहो, क्या आप आपके दोस्त के लिए या फिर जो आपके जीवन में खलबली मचाता है उसके लिए प्रार्थना करो। And I confessed to the Lord. I said, "It's very difficult, but I'll do it." तब मैंने अंगीकार किया, प्रभु से कहा कि प्रभु ये बहुत मुश्किल बात है लेकिन फिर भी मैं करूंगा क्योंकि आप कहते हो। We need to pray not just for our friends. We need to pray for our enemies, not the devil, of course. तो हमको हमारे दोस्तों के लिए ही प्रार्थना नहीं करनी है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो हमारे खिलाफ खड़े हैं, शायद हमारे पीछे हमारे खिलाफ बातें करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें। हमारा दुश्मन यहाँ पे शैतान, उसके लिए नहीं करनी है। Now what happened over here? We find in verse 5 that the prophets who were in Bethel tried to discourage Elisha, saying, "No, don't trouble yourself. Elijah is being taken away. Don't go following him." बेथेल में कुछ नबी लोग थे उसके दोस्त एलीशा के, और उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगे, उसको एडवाइस देने लगे कि भाई बस हो गया, एलिया को आगे बढ़ने दो, उसके पीछे मत चलो, अब यहाँ पे तुम रुक जाओ। And you know what Elisha said? Keep quiet.
और एलीशा जोर से चिल्लाया उसके नबी दोस्तों को और कहा उसने कि चुप हो जाओ। Sometimes the best of God's people will discourage us. तो बहुत बार परमेश्वर के अच्छे लोग भी जो दास हैं, परमेश्वर को जानते हैं, वो भी शायद हमको ऐसी गलत एडवाइस दे सकते So हैं। what are you going to do? तब उस समय हम क्या करें? Praise the Lord. No. It's time to say, get behind me, Satan. उस समय हम उनको क्या कह सकते हैं कि हाँ मैं आपके साथ सहमत हूँ, मैं यहीं रुक जाता हूँ? नहीं, हमको वो नहीं कहना है। उनको कहना है कि शैतान पीछे हट जा। Yes, we have to say that. और यही हमको कहना है। Verse 6, 2 Kings chapter 2, verse 6. Now they are at Jericho. और दूसरा राजा दूसरा में 6 में देखते हैं एलीशा और एलिया दोनों भी जेरिको में अब हैं। End of the life, और जीवन का अंत हो रहा है end of the journey. और जो यात्रा जो है वो खत्म हो रही है। Elijah says to Elisha, okay, now you stay here. और एलिया वापस एलीशा को कहता है अब तू यहाँ रुक जा। Because God is sending me to Jordan. तो यहाँ रुक जा क्योंकि प्रभु अब मुझे इस जेरिको से जॉर्डन या यरदन नदी के पास ले जाता है, ले जा रहा है। ले जा रहा है। God is taking me to Jordan. Now what is Jordan? तो जॉर्डन या यरदन ये क्या है? Now this is very easy. ये बहुत आसान What है। happened at Jordan for Jesus Christ? यीशु के साथ यरदन नदी में क्या हुआ? Come on, somebody help me. That's a kindergarten question. Baptism of the Lord Jesus Christ. यीशु का वहाँ पे बपतिस्मा हुआ। And then, what did John see? What did Jesus see? The Holy Spirit coming down in the form of a dove. और हम देखते हैं यीशु और जॉन बपतिस्मा देने वाला दोनों ने देखा कि पवित्र आत्मा उतर आया यीशु पे एक कबूतर या फिर डव के समान। फाख्ता, not कबूतर. कबूतर ग्रे होता है और फाख्ता फाख्ता सफेद होता है. सफेद है, डव। It was a dove, not a pigeon. यस, वो कबूतर नहीं था, वो फाख्ता था। Fakhta. I don't know what the Marathi word will be for that, but the Urdu word is fakhta. उर्दू में उसे फाख्ता कहते हैं, लेकिन मराठी में शायद पारवा कहते हैं। So what does Jordan speak to us about? तो यरदन ये जो जगह है, नदी है, हमसे क्या कहती है? Speaks to us of the Holy Spirit and speaks to us of visions. और वहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में वो कहता है और दृष्टांतों के बारे में वो कहता है। And then Elijah also knows and he is satisfied with Elisha. तब एलिया और एलिया जो है एलीशा से तृप्त हो जाता है And he finally says to him, और आखिरी में वो उसे कहता है, एलीशा से कहता है, I'm going, what do you want? अब मैं जा रहा हूँ, अब तुझे क्या चाहिए? At the end of his journey, he says, now what do you want? जब वो यात्रा के अंत में एलीशा से कहता है, अब तुझे क्या चाहिए? Now by then, Elisha was probably crying and weeping. अब उस समय तक एलीशा जो है वो बहुत शायद रो रहा होगा। And he says, give to me a double portion. Give to me your mantle. और उसे कहता है कि तेरे ऊपर जो छावनी है, जो वस्त्र है, जो मैंटल है, वो मुझे दे दे, दुगना भाग उसका मुझे तू दे दे। See how easily we ask, Pastor, pray for me for the double anointing. Okay? Double anointing, double, whatever we say. Double portion, double portion. So easily. Oh, I tell you, I don't know how many people, most of hundreds must have come to me in my life and asking for this prayer. Pray, I want a double portion. Okay. What is the double portion? और कितनी आसानी से हम पासवान के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं हमें दूसरा दुगना भाग दे दो। ये यात्रा से हम गुजरते भी नहीं हैं, हम जानते भी नहीं हैं, फिर भी हम बोलते हैं कि हमें ये दुगना भाग हमें दे दो। What is the dugna bhag? What is the double portion? And let's look back at Elijah and Elisha. तो एलिया और एलीशा के जीवन में हम ये दुगना भाग के बारे में देखेंगे। Elijah did 7 miracles. एलिया ने 7 चमत्कार उसके हाथों से हुए थे And Elisha did 14. और एलीशा के हाथों से 14 हुए। Now we know what double portion is. आप जान रहे हैं कि दुगना भाग क्या है? Double of what Elijah did, Elisha did. एलिया ने जो किया उसका दुगना एलीशा ने किया। You
You want a double portion? तो आपको दुगना भाग चाहिए? You want a double portion? क्या आपको दुगना भाग चाहिए? You have to say, Jesus, as much as you did, double of that I want to do. तो हमें कहना है कि यीशु जो आपने किया है उसका दुगना हमको करना है। When you are ready for that, जब इसके लिए हम तैयार हैं, then we should start asking for that double portion. तब हमें वो दुगने भाग को करने के लिए पूछ सकते हैं। I'm not saying we are not ready for it. हम नहीं कहते कि हम तैयार नहीं है। I'm saying we need to be aware of it. हम कहते हैं कि उसके बारे में आपको जानकारी जरूर होती है What कि is this यीशु double? ने What is this double portion? ये दुगना भाग क्या है और यीशु ने ये क्या किया है, So that we don't become too fancy about this. और इसके बारे में कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी या फिर बातें ना बनाएं। From verses 10 to 13 is the most emotional part of this. We're coming to an end now. 10 से 13 में ये बहुत भावनिक भावना से भरा हुआ वचन है। We see how Elisha is looking at Elijah and how the chariot comes and takes him away. ये ऐसी भावनिक ऐसी बात थी कि हम देखते हैं एलीशा खुद की आंखों से देख रहा है, एक बड़ा सा रथ स्वर्ग से होके आ रहा है और एलिया को लेके जाता है। And when Elisha sees Elijah taken up, he calls out to him and says, my father, my father. Actually in Hebrew it is Avi, Avi, A-V-I. Avi, Avi, the chariots of Israel. एलीशा रो के कहता है, जब वो एलिया को उस रथ पे बैठा जोर से रो के कहता है कि अभी अभी मतलब मेरे पिता, मेरे पिता। And the mantle falls on him. और उसी समय उसके ऊपर जो एक कवच था वो गिर जाता है एलीशा के ऊपर। That's the journey और ये वो यात्रा है। for that double portion. वो अगर दो दुगना भाग जब उसने पाया है, वो दुगना भाग पाने के पहले ये बड़ी यात्रा से वो गुजरा है। And all of us are in this journey. All of us are in this journey. हम सब इस यात्रा में आज भी हैं। Now where are you and where am I? Am I at Gilgal? तो आप और हम कहाँ हैं ये सोचने की बात है। क्या हम गिलगाल में हैं, Relaxed. आराम कर रहे हैं? I'm saved. I'm baptized. I'm baptized in the Holy Spirit. I've got all my comforts. Let me relax. क्या हम गिलगाल में हैं? हमने यीशु को स्वीकारा है, बपतिस्मा लिया है, अभिषेक से भरे हैं, पवित्र आत्मा से भरे हैं, अब हम आराम की जिंदगी जी रहे हैं। Not to think relax, but I'm moving on. यीशु कहा कहते हैं ठीक है तुम रिलैक्स हो, आराम कर रहे हो, लेकिन मैं तो आगे बढ़ता हूँ। I'll see you in heaven. You relax. यीशु हमसे कहता है मैं स्वर्ग में आपसे जरूर मिलूंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। And he says, I'm going back to Bethel. और वहाँ पे एलिया जो यीशु को दर्शाता है वो कहते हैं कि मैं अब बेथेल जा रहा हूँ। Are you at Gilgal or are you at Bethel? तो आप सोचिए अपने मन में कि आप गिलगाल में हो या फिर बेथेल में हो। From Bethel to Jericho. बेथेल से जेरिको की तरफ। What is Bethel? बेथेल क्या है? Surrender. समर्पण करने की जगह, Everything given to the Lord. सब कुछ परमेश्वर को वापस देने की जगह। And then the Lord says, और वहाँ पे परमेश्वर कहते हैं time for battle. अब तुम Battleground. तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। And then we say, I'm a man of peace, I'm a woman of peace. अपने को झगड़ा नहीं करना। और हम उसको नकारते हैं जब हमको यहोवा कहते हैं युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, कहते हैं बहाने बनाते हैं मैं तो शांति प्रिय ऐसा इंसान हूँ, मैं लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। नहीं पढ़ना चाहता हूँ। I don't want to get in this झंझट। पंगा में नहीं लेना हमको। This is real. Some years ago, about 20 years ago or more, I was in Lonavala. I was teaching on this session on how the devil comes to worry us. लोनावला में मैं था कुछ सालों पहले, और जो युद्ध करने वाले, प्रार्थना में युद्ध करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में ये सिखा रहा था कि कैसे युद्ध लड़ा जाता है और खड़ा वहाँ होते हैं। And I was teaching of the devil being our enemy. और मैं बता रहा था कि शैतान कैसे हमारा दुश्मन है। And you know, this brother came to me after the meeting and he said, brother, बहुत अच्छा लगा, मगर अब हम लोग शैतान से क्यों पंगा लें? तब उसके बाद सीखने के बाद एक भाई मेरे पास आते हैं और कहते हैं सुन के तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन भाई मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि हम शैतान से ऐसे ही पंगा क्यों ले? क्यों पंगा ले शैतान से? And I had to tell him, I said, little brother,
आप शैतान से पंगा लो या नहीं लो, शैतान आपसे जरूर पंगा लेगा, अभी पकड़ खत्म कर दो उसको। Praise the Lord. आपने बोल दिया हिंदी में। So if we don't take panga with the devil will take panga with us. तो ये कहने की बात है कि हम कहते हैं हमें पंगे नहीं लेने हैं, हमको शांति बनाए रखनी है, लेकिन बात असलियत में ये है क्योंकि वो खड़ा है पंगा लेने के लिए और वो लेके रहेगा। Jericho to Jordan. जेरिको से जॉर्डन की तरफ। That's a time for the Holy Spirit. और वो समय है पवित्र आत्मा का। And the time to move in the gifts of the Holy Spirit. और ऐसा समय है कि पवित्र आत्मा के दानों में बढ़ने का। There are 9 gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के 9 दान बाइबल हमको बताती है। Vast majority of Christians, after they receive the baptism of the Holy Spirit, they speak in tongues, pray in tongues, and they stop there. और बहुत सारे मसीही लोग हैं, पवित्र आत्मा का दान उन्हें मिलता है, अन्य भाषा में वो प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा में भर जाते हैं, दान भी शायद मिलते हैं, लेकिन वो उसके बाद आराम कर लेते हैं। एक ही दान इस्तेमाल करते हैं। हाँ, 9 दानों में से सिर्फ एक ही दान वो इस्तेमाल करते हैं। उन्हें मिलते 9 हैं, लेकिन God has given us the 9 gifts of the Holy Spirit. लेकिन यहोवा ने हमको, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आते हैं, तब 9 के 9 दानों से वो हमको भरता है। And we need to ask the Lord, Lord, you have baptized me, you have strengthened me, give me a particular gift of this 9 that I can utilize. हमने प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर 9 दानों से आपने भरा है, तो क्यों ना हमें बताइए कि ऐसा दान जो मैं इस्तेमाल कर पाऊं। In 1 Corinthians, don't take it out, 1 Corinthians chapter 14 and verse 26, it says that when you come together as an assembly, as a people, every one of us has a word to give, to share. Everyone, it says, everyone. When we come together, 1 Corinthians 14:26, if I'm not wrong. पहला करंथियों में 14 में 26 का कहता है, जब हम कलीसिया में एक साथ आते हैं, बाइबल हमको कहता है कि सभी को प्रभु एक वचन देता है बोलने के लिए, बांटने के लिए, एक दूसरे को बांधने के लिए। The Lord wants us to move in the gifts of the Holy Spirit. और परमेश्वर चाहते हैं कि वो जो गिफ्ट है, वो दान है पवित्र आत्मा को, उसको लेके हम आराम से एक जगह बैठे नहीं, लेकिन उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़े। If somebody gives you some gift and you put it away, that gift will rust. अगर आपको कोई तोहफा, अगर आपको प्यार से कोई देता है और आप कहते हो कि नहीं वो तोहफा बहुत अच्छा है, मैं उसको अलमारी में संभाल के कहीं रख देता हूँ, तो उस तोहफे का कोई इस्तेमाल कभी भी नहीं होने वाला, वो तोहफा वहाँ पे सड़ जाएगा। God has given you gifts. यहाँ पे परमेश्वर ने हमें तोहफे दिए हैं, गिफ्ट्स दिए हैं, दान दिए हैं। Encourage this lovely group of people, children of God, to exercise the gifts. मैं यहाँ पे आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास दान दिए गए हैं, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल हम में से सब लोग यहाँ पे करें। In today's day, prophecy is so important. और आज के दिनों में भविष्यवाणी इतनी महत्वपूर्ण है, Dreams and visions are so important. स्वप्न और दृष्टांत इतने महत्वपूर्ण है, Interpretation of tongues is so important. पवित्र आत्मा के अन्य भाषा का ट्रांसलेशन करना इतना महत्वपूर्ण है। Discerning is so important. आत्मा को परखने का दान जो है वो इतना महत्वपूर्ण है। Gift of healing to utilize this is so important. परमेश्वर ने दिया वो जो दान है चंगाई देने का, वो इतना महत्वपूर्ण है। Ask the Lord. क्यों ना प्रभु से हम Lord, पूछें, stir this up in me. हमारे अंदर जो है वो उसको वो भड़का दे, वो आग को। As we come to an end, I'm going to ask this question and leave it with you all. Where are you standing? तो मैं आखिरी समय में आपको ये बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, इस यात्रा में हम कहाँ हैं? हम कहाँ? Where am I, Lord? मैं कहाँ हूँ परमेश्वर? And the Lord will tell you where you are. और परमेश्वर आपको जरूर बताएंगे कि आप यहाँ कहाँ हैं। The Lord won't leave you there. वहाँ पे परमेश्वर आपको छोड़ेंगे नहीं। Let's